Hello students, hope you all are safe at your place. In Organization of Commerce and Management, we have started second chapter, that is functions of management. In that, we have already completed first function, that is planning. Then second, also we have completed organizing. Now today we are moving towards third function, that is staffing. Now what does the staffing means? Staffing का मतलब क्या है? Staff क्या होता है? Staff is the employees which is required in any organization for execution of the work, for completion of the work. Now, today, let's see what does mean staffing. Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. स्टाफिंग का क्या मतलब है? जो भी प्लानिंग किया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो भी एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए लगने वाले स्टाफ, उसके लिए लगने वाले एम्प्लॉयज. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स. दैट मीन्स जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की जरूरत होती है, तो जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, हमको यहाँ पे जॉब मिल सकती है. वहाँ पे सिलेक्शन होता है, वहाँ पे प्लेसिंग होती है, अप्रेजिंग होती है, रेम्यूनरेटिंग होता है, और बेस्ट वर्कफोर्स के लिए जितनी भी चीजें लगती है वो सब स्टाफिंग के थ्रू की जाती है. ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसका ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट स्टाफिंग फंक्शन. अगर हमने अप्रोप्रिएट स्टाफिंग की है, प्रॉपर प्लेस के लिए प्रॉपर पर्सन को हमने अगर अपॉइंट किया है, दैट मीन्स द ग्रोथ and the success of the venture is sure. It is totally the base. It is very challenging for organization to focus on best utilization of workforce by using their talent and skill, retaining them, and arranging training and development programs. Really, it is very challenging work for any organization because they have to focus on best utilization of workforce. They have to look that the whichever staff they have appointed will be efficient. He will be working to his full strength. His talent will be fully utilized. Whatever skill he is having or she is having will be utilized there, for and whatever training and development programs arranged for them will be taken, and they will be utilizing their skills and talent in their work. So, the function emphasizes managing human and non-material और financial resources. तो ये फंक्शन किस पे ज्यादा एम्फेसिस करता है? मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज. मतलब यहाँ पे पैसों की बात नहीं आती है या किसी चीज मटेरियल काइंड की बात नहीं आती है. यहाँ पे टोटली हाउ द ह्यूमन बींग्स आर मैनेज, हाउ द राइट पर्सन is selected and appointed for the right job. This was the meaning of staffing. So, let's see students, what is the definition of staffing? Definition of staffing is given by Luther Gulick. The staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable conditions of work. So what does this definition mean? The staffing is the whole personal, not personal. It personal. Personal means it is also the meaning staff. तो staff function of bringing in and training the staff. Staffing क्या है? एक पूरा एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, उनको अपनी कंपनी में लेके आते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह से काम करना है, एंड ऑल्सो मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क.
उनको एक फेवरेबल कंडीशन भी हम देते हैं कि आप ये यहाँ पे ऐसे काम करोगे, बिकॉज इफ एम्प्लॉय इज नॉट comfortable or staff is not comfortable in his company, then he might not work to his full capacity or capability, or there may not be a smooth functioning. So staff को favorable condition देना भी जरूरी है, training देना भी जरूरी है. So staffing is what? It is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable condition of work. This definition is given by Luther Gulick. Now, let us see students what is the importance of staffing. Staffing की कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्टाफिंग करते समय या स्टाफ को अपॉइंट करते समय, और ये कितना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी फॉर्म होती है तो उसके इनिशियल स्टेज से ही स्टाफ की जरूरत पड़ती है. ऐसे नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया और फिर आराम से हम स्टाफ अपॉइंट करेंगे, नहीं. अगर स्टाफ अपॉइंट नहीं करेंगे तो काम स्टार्ट कैसे होगा? विदाउट स्टाफ इट इज नॉट पॉसिबल. तो एट द इनिशियल स्टेज स्टाफिंग इज वेरी मच नेसेसरी. ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपेंशन, रिटायरमेंट, resignation, accident, death of employee, etc. vacancies are created in organization. अब ये कुछ अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की या रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है. जैसे कि प्रमोशन हो गया, किसी को हायर पोस्ट मिली तो उसका लोअर वाला पोस्ट खाली होता है. कुछ एक्सीडेंट किसी के साथ हो गया, या बिजनेस को एक्सपांड करना है, या फिर कोई रिटायर हो गया, किसी ने रिजाइन कर दिया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी का ट्रांसफर हो गया. मेनी रीजंस आर देयर फॉर स्टाफिंग. तो इसीलिए स्टाफिंग करना जरूरी है एंड इट इज इम्पोर्टेंट. सो स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन. राइट पर्सन एट राइट जॉब विद राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. राइट इंसान राइट जॉब के लिए और विद राइट पे होना जरूरी है, और यही बेसिक प्रिंसिपल है स्टाफिंग का. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंस. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज effective managerial function. Effective managerial function means staffing is the key to effective performance of other function of management. स्टाफिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट की है, क्योंकि बाकी जितने भी फंक्शंस है ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले हैं? प्लानिंग तो हमने बहुत कर ली, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कर लिया, बट इसको एग्जीक्यूट करने वाला तो स्टाफ ही है. और अगर स्टाफ ही हमारा प्रॉपर नहीं है तो जो भी हमने प्लानिंग किया है वो किसी काम का नहीं है, वो हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. तो सारे फंक्शंस जो भी हम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसका मेन की कौन है? स्टाफ. सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो बाकी के फंक्शंस है इसको एग्जीक्यूट करने वाला तो स्टाफ ही है. तो स्टाफिंग इज वेरी मच नेसेसरी. Competent workforce can work effectively in different functional area. अभी जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है या कॉम्पिटेंट स्टाफ है, कॉम्पिटेंट यानी जो केपेबल है, जो वो काम अच्छे से कर सकता है, दैट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया. अभी अलग अलग फंक्शनल एरिया कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में कौन से होते हैं? जैसे प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स है, फाइनेंस है. तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो इंसान सुटेबल है, अगर उसको वहां पे ही अपॉइंट किया जाएगा, दैट मीन्स द राइट पर्सन एट राइट जॉब, तो जो भी आउटकम होगा वो कैसा होगा? बहुत ही इफेक्टिव होगा. द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग. तो बाकी जितने भी फंक्शंस है उन सब का इफेक्टिवनेस, उन सब का आउटकम किसके ऊपर बेस्ड है? इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग. अगर प्रॉपर स्टाफिंग किया है, प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर डिपार्टमेंट प्रॉपर वर्क दिया है, तो ऑफ कोर्स ही विल बी वर्किंग स्मूथली एंड इफेक्टिवली.
without doing any wastage. So staffing is the most important function. Now, next is second function is leads to effective utilization of resources. अभी मैंने बोला कि अगर स्टाफिंग प्रॉपर हुआ है तो देयर विल बी effective result and also it will leads to effective utilization of resources. Staffing function leads to effective utilization of human resources, that is workforce. जो भी हमने स्टाफ अपॉइंट किया है, अगर वो प्रॉपरली अपॉइंट किया है, जॉब को ध्यान में रखते हुए और स्टाफ के टैलेंट और स्किल को ध्यान में रखते हुए, तो ऑफ कोर्स उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा. जो भी कंपनी का ग्रोथ है या सक्सेस है वो पूरी तरह स्टाफ के ऊपर ही डिपेंड होता है. तो कंपनी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. Proper care is taken at every stage, such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development, etc. तो जब स्टाफिंग की बारी होती है, अपॉइंटमेंट की बारी होती है, तो बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर कैंडिडेट सिलेक्ट होना चाहिए, उसको प्रॉपर प्लेसमेंट मिलनी चाहिए, उसका रेम्यूनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, साथ ही साथ उसको ट्रेनिंग भी प्रॉपर मिलनी चाहिए ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए. स्किल तो उसके अंदर होंगे, टैलेंट भी होगा, बट जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो भी उसको पता होनी चाहिए, जिसके लिए उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है और उसी के बाद उसका टोटल डेवलपमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है, R&D है. तो अगर हम बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड वाला अगर कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ही नोज द अकाउंट, ही विल हैंडल इट वेरी प्रॉपरली. और जैसे R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे कोई साइंस बैकग्राउंड वाला स्टाफ होगा या एम्प्लॉय होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ही विल बी नोइंग मोर अबाउट दैट. ऐसे ही प्रोडक्शन हुआ या सेल्स हुआ वहाँ पे, या फिर कोई और मैनेजर की पोस्ट हुई वहाँ पे, तो हर जगह पे स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट बहुत ही सोच समझ के करने की ज़रूरत है ताकि जो भी उसका रिजल्ट है बहुत ही इफेक्टिव हो, कंपनी के लिए फायदेमंद हो, ताकि कंपनी की ग्रोथ हो और कंपनी को हर तरह से सक्सेस मिले. So staffing is very much necessary, very much important in every part of the business. Excessive burden of work is avoided. अगर प्रॉपर स्टाफिंग हुआ है तो एक्सेसिव बर्डन भी नहीं आएगा किसी के ऊपर, किसी को किसी का काम नहीं करना पड़ेगा. जिसको जो वर्क दिया है वो अपना वर्क प्रॉपरली और इफेक्टिवली कंप्लीट करेगा. Optimum utilization of human resources result in improvement in performance and progress of organization. अगर जो भी resources available है और जो भी human resources है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिमम इस्तेमाल करते हैं, तो देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. तो वहाँ पे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगा, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा. तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन at the optimum level. So now we will move towards third function, that is builds cordial relationship. Cordial relationship मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप या एक कोऑपरेटिव रिलेशन जो हम प्रॉपरली कर सकते हैं. जैसे अगर प्रॉपर स्टाफ अपॉइंट किया है सो दे विल वर्क स्मूथली, इफेक्टिवली, और साथ ही वो आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगे, एक दूसरे का जो भी वर्क है वो समझ के लेंगे, एक दूसरे को समझ के लेंगे और साथ ही में काम कंप्लीट करने में एक दूसरे की मदद करेंगे. दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग healthy relationship among all level of employees in the organization.
ये फंक्शन स्टाफिंग इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से बाकी जितने भी स्टाफ हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है, फिर वो कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। तो this function is helpful in building healthy relationship among all level of employees in the organization. A smooth human relation is the key of better communication and coordination of managerial efforts in an organization. अगर स्मूथ रिलेशन हो, किसी के साथ किसी के कोई ग्रजेस ना हो, किसी के साथ किसी के भी क्लैशेस ना हो, हर कोई अपना काम प्रॉपरली कर रहा है और किसी को भी ओवरबर्डन नहीं है या किसी को कम काम नहीं है, तो देयर विल बी अ प्रॉपर healthy relationship and also a proper communication and coordination. So it is very much necessary in any organization that workers or employees should have, their staff should have a cordial relationship, because this will help for the growth of the company, for the success of the company. Due to this function, employees will work properly and no misunderstanding will be there. किसी के अंदर कोई भी क्लैशेस नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनके एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को समझे और ध्यान से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके, कम्युनिकेट करके काम करें, तो ही कंपनी आगे बढ़ सकती है। अगर एम्प्लॉयज में ही कोई एकता नहीं है, हर कोई आपस में झगड़ रहे हैं, तो कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो सकती है क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू बिल्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। नाउ we will move towards fourth function, that is helps human resource development. Now, human resource development. Staffing also helps in human resources development. Skilled and experienced employee is an asset of business organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंपनी हो, अगर उनके पास अच्छे एम्प्लॉयज है, स्किल्ड है, टैलेंटेड है, जो अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करके कंपनी को और आगे लेके जा सकते हैं, कंपनी को और सक्सेस दिला सकते हैं, तो वो उनके लिए एक एसेट है। कंपनी के लिए वो एम्प्लॉय या वो स्टाफ क्या है, एक एसेट है। तो स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉय। स्टाफिंग की वजह से क्या हेल्प मिलती है? इट हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज। स्टाफिंग अगर हमने प्रॉपरली की है, प्रॉपर स्टाफ अपॉइंट किया है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स है वो हम उनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं और साथ में उनको ऑर्गेनाइजेशन के हर एक चीज के बारे में बता के उनको और आगे बढ़ा सकते हैं। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। एम्प्लॉयज जब भी अपॉइंट किए जाते हैं या जब भी स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, तो उनको हर कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है ताकि उनका और अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। अब नो डाउट कि उनके अंदर टैलेंट है, स्किल है, बट फिर भी जो कंपनी की नीड है वो पूरी करने के लिए उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो कुछ पीरियड होता है स्टाफिंग का, जो स्टाफ को जो ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। कहीं पे 15 डेज का ट्रेनिंग होता है, कहीं पे 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है। तो वो ट्रेनिंग में जो भी वर्कफोर्स उन्होंने अपॉइंट किया है, जो भी स्टाफ अपॉइंट किया है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल ट्रेनिंग हो जाती है। It also ensures smooth functioning of all the managerial aspect of the business organization. तो staffing also ensures a smooth functioning. Staffing अगर proper की गई है तो ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन वेरी स्मूथली और जितने भी मैनेजर एस्पेक्ट है वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर जॉब को ध्यान में रखते हुए और स्टाफ के टैलेंट और स्किल को ध्यान में रखते हुए हमने उनको वो जॉब ऑफर की है, उनको अपॉइंट किया है। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी द completion of every managerial aspect. Now we will move towards fifth function, that is helps in effective use of technology and other resources. Now, staffing also helps in effective use of technology and other resources. अभी आजकल हम देखते हैं कि हर कोई
न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर है, हर एक को टेक्नोलॉजी पता है। तो अगर हम ट्रेंड एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं तो उनको उनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उसका यूज कंपनी के लिए कर सकते हैं। ट्रेंड एम्प्लॉयज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली। क्योंकि आजकल का जो यूथ है या आजकल का जो जनरेशन है, दे आर मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। उनको टेक्नोलॉजी ज़्यादा पता होती है या ज़्यादा पता है, वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हम उनकी ये चीज़ों का हम कंपनी के लिए अच्छे से यूज़ करके ले सकते हैं। तो उनके पास जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या जो भी मेथड ऑफ वर्क वो अच्छे से करना जानते हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर कंपनी को हो सकता है। तो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स हम कॉम्पिटिटिवली मोर कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। हम एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। हम किसी और हमसे जो आगे ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे जो आगे कंपनी है, उनको हम टफ कंपटीशन दे सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ technology and whatever other resources we are having. It is also useful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity. हम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके और बाकी रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज करके हम हमारे वर्क फोर्स का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। कंपनी का स्टैंडर्ड इन द सेंस हमारी क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो टर्म्स में हम कंपनी को और आगे लेके जा सकते हैं ताकि कंपनी का और अच्छे से नाम हो। तो अगर हम नए टेक्नोलॉजी से अवेयर है, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो हेल्प्स इन effective utilization of resources and effective use of technology. Now our sixth function is improves efficiency. Improves efficiency. Training and development programs are offered to the employees for self-development and organizational development. जब भी हम कोई एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तब एम्प्लॉयज का खुद से एक सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी होता है। थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन of the through proper selection, the organization gets quality employees, and through proper training the performance level of the employees can be improved. तो अगर हमने प्रॉपर स्टाफ अपॉइंट किया है, प्रॉपर स्टाफ सिलेक्ट किया है, तो वी गेट क्वालिटी एम्प्लॉयज. दैट मीन्स द whichever quality our company needs, that quality of employees we get for our organization, and through proper training their performance level is increased. So appointing proper staff is very much essential or very much necessary for efficiency and for better performance level of the employees, because it helps to improve their performance level in the company. Next is long-term effect. Now, what does long-term effect means? Now we see qualified, efficient and skillful workforce is always an asset of the organization. अगर एम्प्लॉय प्रॉपरली अच्छे से क्वालिफाइड है, अपने काम में बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत अच्छे स्किल्स है उसके अंदर, तो ऑफ कोर्स इट विल लीड कंपनी towards success. So that staff is always regarded as asset to the company. अगर वो एम्प्लॉय अपने क्वालिटीज का, अपने क्वालिफिकेशंस का, अपने स्किल का, अपने टैलेंट का पूरी तरह इस्तेमाल करके कंपनी के लिए अगर वो
पूरे मेहनत से काम करता है तो ऑफ कोर्स कंपनी विल गेट द डिजायर सक्सेस. सो दैट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट फॉर द कंपनी. और वैसे एम्प्लॉयज को, वैसे स्टाफ को कंपनी एक एसेट की तरह मानती है. It is the asset for the organization. Proper selection of employee leads the organization towards the path of success. अगर एम्प्लॉय प्रॉपरली सिलेक्ट किया गया है, उसको प्रॉपर जॉब दिया गया है, उसको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलता है, तो ऑफ कोर्स ही विल बी working very effectively, very smoothly, and ultimately it will leads towards the path of success. Naturally, long-term positive effect can be observed on the efficiency of the organization. तो हम इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दे सकते हैं कि भले ही हमने आज वो स्टाफ को अपॉइंट किया है, हमें आज का उसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा, बट उसका जो काम है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो क्वालिफिकेशन है, उसके जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो धीरे धीरे हमको पता चलने लग जाएंगे उसके एफिशिएंटली काम करने की वजह से या उसकी एफिशिएंसी की वजह से. और फिर हमको ये लॉन्ग टर्म में जरूर पता चलेगा कि कंपनी धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है. सो ये जो स्टाफिंग का रिजल्ट है, ये लॉन्ग टर्म में जरूर मालूम पड़ता है. सो स्टाफिंग is also necessary for long term effect. Next is essential contribution. Now, what is essential contribution? Staffing ensures the continuity and growth of the organization through development of employee. स्टाफिंग अगर प्रॉपरली हुई है तो ये तो कंफर्म है कि कंपनी की कंटिन्यूटी और ग्रोथ प्रॉपरली होती रहेगी और कंपनी और एम्प्लॉयज का भी प्रॉपर डेवलपमेंट होता रहेगा. तो मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, एम्प्लॉयज का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी. तो स्टाफिंग एंश्योर्स द ग्रोथ ऑफ कंटिन्यूटी, ensures the growth and continuity of the organization through development of employees. Selection is based on the ability of the prospective employees. Staffing यानी सिलेक्शन जो होता है एम्प्लॉयज का या स्टाफ का, उसका बेस क्या है? बेस इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. हम जो भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहते हैं या जो भी स्टाफ अपॉइंट करना चाहते हैं, हम उनकी एबिलिटी देखते हैं कि क्या वो काम कर सकता है. Is he able to do that work? Is he capable to do that work? Does he have that talent? Does he have that skill? So बहुत ही सोच समझ के ये काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो स्टाफ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है और आउटकम उसका प्रॉपर नहीं है, तो somewhere it will be going to affect the company. तो ये सोच के बहुत ही ध्यान से उनको स्टाफिंग का फंक्शन कंप्लीट करना पड़ता है, so that the organization can meet the future challenges wisely. अगर एम्प्लॉयज प्रॉपर स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं और उनकी जो भी वर्किंग है स्मूथली हो रही है, तो दे कैन मीट देयर फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली. जो भी उनके फ्यूचर चैलेंजेस उनको उनके रास्ते में आने वाले हैं, उनको वो ओवरकम करने के लिए जरूर काम आएंगे. उनका अभी किया हुआ स्टाफिंग उनको फ्यूचर में जरूर काम आ जाएगा. Therefore, the contribution of the staff in their future role is taken into account in staffing function. तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है कंपनी में, जो उनका फ्यूचर रोल होने वाला है या जो उनको रोल दिया जाने वाला है फ्यूचर कंपनी में, तो अभी उनकी जो एबिलिटी है या अभी उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनको उसमें ध्यान में रखते हुए ही उनको अपॉइंट किया जाता है, ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी में फ्यूचर में कंपनी को काम आ सके और कंपनी की और ज़्यादा में ज़्यादा ग्रोथ हो सके. तो स्टाफिंग का और स्टाफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द कंपनी. Now our next point is provides job satisfaction. Now what does mean job satisfaction? That is, you are satisfied with your job. Now when the employees get
is get satisfied with his job. जब उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिलती है, जब उसको टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स मिलते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है, रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलता है, तब वो जॉब से पूरी तरह सेटिस्फाइड होता है. तो स्टाफिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन. Employees can be motivated through financial and non-financial incentives. हम एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकते हैं, कभी फाइनेंशियल या कभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके. फाइनेंशियल यानी जैसे हमने उनको इंसेंटिव्स दिया, कमीशन दिया, या उनका टारगेट कंप्लीट होने पे उनको कुछ रिवॉर्ड दिया. और नॉन फाइनेंशियल मतलब कभी कोई फंक्शंस अरेंज करके उनको सबके सामने अप्रिशिएट किया, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया या अवार्ड दिया, दे विल ऑटोमेटिकली गेट मोटिवेटेड. सो staffing is very much necessary for job satisfaction. It provides job satisfaction. Adequate remuneration increases job satisfaction and morale of the employee. जितना उनको काम दिया जा रहा है, अगर उतने ही प्रॉपरली उनको रेम्यूनरेशन दिया जाए, उनका सैलरी उनको टाइम टू टाइम मिलता जाए, तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनका मोरल इंक्रीज होता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि हमको कंपनी के लिए पूरी ईमानदारी से और पूरे लगन से काम करना है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, fair remuneration and job security are the factors which are important in providing job satisfaction. उनको अगर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती रहेगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम होते रहेंगे और फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा, उनको अपनी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी कि मुझे एक ही दिन में काम से नहीं निकाला जाएगा, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे काम आती है? जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए. इन्हीं सारी चीज़ों से एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल रही है और मेरा जॉब सिक्योर है. सो दिस ऑल लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन. So it is very much necessary for every staff that he must get job satisfaction. तभी वो अपना काम पूरे ईमानदारी से और लगन से करेगा, and it will help for the organization for more and more success, for better success, better future. So students, we have completed 9 points and the last one is maintains harmony. Maintains harmony means maintains harmony. In staffing process, individuals are recruited, selected and placed, as well as their performance is regularly appraised and promotion are given on the basis of merit. जब भी स्टाफिंग होता है तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस प्रॉपर अप्रिशिएट किया जाता है, रेगुलरली अप्रेजल्स होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, और उनका ये जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी अप्रेजल है, ये टोटली किसका ऊपर बेस्ड होता है? मेरिट के ऊपर. किसने सबसे ज़्यादा अच्छे से काम किया, किसने एकदम पूरे ईमानदारी से स्मूथली इफेक्टिवली काम किया, बिना किसी कंपनी को नुकसान किए, बिना किसी वेस्टेज किए. तो फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज. तो हर एम्प्लॉय को ये क्राइटेरिया पहले से ही बता दी जाती है, पहले से ही कम्युनिकेट किया जाता है और ये क्लियर किया जाता है कि आपको अप्रेजल्स या आपको प्रमोशंस कौन से बेसिस पे मिलने वाले हैं. और ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि कंपनी में हार्मनी मेंटेन रहे. हार्मनी यानी पीस, हार्मनी यानी शांतता. वहाँ पे झगड़े नहीं होने चाहिए, वहाँ पे क्लैशेस नहीं होने चाहिए कि आपने इनको प्रमोशन दिया, मैंने काम ज़्यादा अच्छे से किया था, मेरा ये रिजल्ट है, उसका वो रिजल्ट है. ये सब नहीं होना चाहिए. इसीलिए पहले से ही कंपनी अपने जो भी क्राइटेरिया है वो एम्प्लॉयज़ को पहले से ही बता देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे, पीस एंड हार्मनी बरकरार रहे. सो स्टाफिंग मेंटेन्स पीस एंड हार्मनी in an organization.
इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि अगर किसी कंपनी में हार्मनी नहीं होगी, वर्कर्स झगड़ते रहेंगे, प्रॉपरली अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, कोई काम ठीक से नहीं होगा. So it is very much necessary while doing staffing that they should communicate their criteria to the employees for better future. So students, here we have seen all the 10 points of importance, and we will be doing short revision of each topic. First of all, we have started with staffing. We have seen the meaning of staffing, in which we have seen that the staffing is a function of execution according to the plan and organization. अगर staffing proper नहीं किया गया है तो बाकी functions हम properly execute नहीं कर पाएंगे. It is very much challenging for the organization to focus on the best utilization of workforce, and this function morely emphasis on managing human and not material or financial resources. Now, nextly, we have seen definition of staffing, which is given by Luther Gulick. The staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable condition of work. That is, स्टाफिंग क्या है? होल पर्सनल फंक्शन, जो कि कंपनी के अंदर लेके आते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही उनके लिए फेवरेबल कंडीशन भी बनाई जाती है ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके. एंड देन वी हैव सीन 10 different important point of staffing. That was effective managerial function leads to effective utilization of resources. Builds cordial relationship build करना ज़रूरी है. Then helps human resources development. Then also staffing helps in effective use of technology and other resources. It is very much important for improving efficiency. Then for long term effect, फ्यूचर का सोच के उनको प्रॉपरली स्टाफिंग करना ज़रूरी है. Then it is essential for contribution. एंड नेक्स्ट वाज प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन. कंपनी को और एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है. एंड द लास्ट वन वाज मेंटेन्स हार्मोनी. कंपनी में हार्मोनी मेंटेन रहना ज़रूरी है ताकि कंपनी प्रॉपरली और स्मूथली फंक्शन कर सके. So student, I hope you all have understand this function of staffing, and you will be seeing other function very shortly. Thank you. Take care.